ले चुका है। And welcome back, viewers. The shocking murder case has been reported in Delhi, where a serving police constable allegedly shot his wife dead on a road in East Delhi's Kalyanpuri area. The accused, identified as Delhi Police Constable Manish, allegedly opened fire at his wife Priyanka Bhati using his service pistol around 3 am on Monday, following a heated argument. The incident took place just hours after Priyanka's birthday. Her family has alleged dowry harassment and claimed that she was being subjected to repeated abuse. Police have initiated an investigation into the matter. Constable shoots his wife dead with his service pistol after an argument. A heated argument took place between the couple, after which the constable husband shot his wife dead at 3 am on a road. And this is after she was celebrating her birthday. After her birthday, the constable has killed the wife. The family of the victim is now alleging it was a dowry death. There were allegations of dowry that have been put on the accused constable in this case. Investigation is underway. Case of murder has been registered. Multiple police teams are conducting raids at the various locations. Now, Priyanka's family have accused the constable of dowry harassment, and it suspects that she was first assaulted at home before being taken out on the pretext of treatment and later shot. Now, Javed Hussain is joining us on this. Javed, एक और डाउरी हरासमेंट का केस जिसमें महिला की जान ले ली गई है, और ये तो पुलिस कांस्टेबल बताए जा रहे हैं. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताइए, किस प्रकार से ये मर्डर हुआ? देखिए, ये 13 जुलाई को रात के 2 बजे जो है मनीष भाटी जो है वो प्रियंका अपनी पत्नी को जो विनोद नगर में रहते हैं ईस्ट दिल्ली में, वो रात में लेकर निकले थे. उनकी पत्नी का बर्थडे था, 34वां बर्थडे था बताया गया. उसके बाद किसी बात को लेकर बहस चल रही थी. बहस चलने के बाद जो है प्रियंका स्कूटी से नीचे उतरती है. उसके बाद फिर बहस शुरू हो जाता है. उसके बाद जो है मनीष जो है अपने जो अभी तक जानकारी मिली कि अपने सर्विस रिवॉल्वर से जो है प्रियंका पे फायरिंग कर देता है और वहीं पर उसको छोड़कर फरार हो जाता है. पास में ही एक डिलीवरी बॉय था जिसने उसे लाकर वहां पर उसे अस्पताल छोड़ एलबीएस अस्पताल ले गया, लेकिन पता चला जहां एलबीएस अस्पताल में उसकी मौत हो गई. इस पूरे मामले में जहां एक तरफ प्रियंका के घर वाले इसे डॉरी से लेकर जोड़ रहे हैं, वही दूसरी तरफ पुलिस अब इसमें हर एक एंगल से लेकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस इसमें ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या जो मनीष है, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में एटीएस यानी कि एंटी ऑटोथैप स्क्वाड की टीम में पोस्टेड है, अब उसको लेकर अलग अलग टीमें जो है इसको सर्च कर रही है कि आखिर वो कहां पर है. लेकिन इस पूरे मामले में प्रियंका के घर वालों का कहना है कि कुछ दिनों पहले यानी कि 3 साल उनकी शादी को हो गया था और बीच में जो कुछ विवाद होने के बाद प्रियंका अपने भाई के घर चली गई थी, जहां वो 8 महीने वहां पे रही थी. और इसको लेकर जो है प्रियंका और जो मनीष है उनके परिवार वालों के बीच जो है विवाद भी हुआ था. लेकिन बाद में चीजें ठीक हो जाने के बाद फिर प्रियंका वापस आ गई थी. लेकिन अब आखिर क्या इसके पीछे सिर्फ डॉरी का मामला, दहेज का मामला है या फिर कुछ और एंगल है, उसको लेकर भी पुलिस जांच करी, क्योंकि पुलिस ये जानकारी हासिल करना चाह रही कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि दिल्ली पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जबकि उसे सारी जी. बने रहे हमारे साथ जावेद. वी हैव सम डिटेल्स फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज एज वेल, व्यूअर्स. Now, CCTV footage has allegedly captured the couple arguing moments before the fatal shooting. Police sources say the constable fled the spot after the incident with his wife's mobile phone. The injured woman was rushed to the hospital by a pizza delivery executive and passers-by, but she could not be saved. The accused constable is currently absconding. Police have registered a murder case. Multiple teams are conducting raids at possible hideouts in Haryana and other locations. Magisterial inquiry has also been initiated
as the marriage was less than 7 years old. Once again, Javed Hussain is there with us. Javed, एक और महत्वपूर्ण डिटेल है, ये कांस्टेबल महिला का फ़ोन लेके फ़रार हुआ है. क्या कुछ लीड्स मिल पाए हैं कि किस दिशा में ये गया हो? देखिए, दिल्ली पुलिस को अभी मनीष को लेकर कोई लीड नहीं मिला है, लेकिन दिल्ली पुलिस मनीष से जुड़े हुए उसके दूसरे जो क्लोज उसके कलीग हैं दिल्ली पुलिस के, उनसे या मनीष के और अपने क्या नेटवर्क हैं उसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है. और पुलिस ने कई टीमें बना रखी है, जिसमें मनीष के घर से लेकर मनीष के उन लोकेशन पे जहां पे मनीष जा सकता है, उस लोकेशन पर दिल्ली पुलिस अपनी सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है. देखिए, इस पूरे मामले में जहां जो मनीष के फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन पुलिस उसके लास्ट लोकेशन और उस पूरे रूट को लेकर जो है पुलिस एक रूट मैपिंग की है, जिससे कि मनीष के लोकेशन तक पहुंचा जा सके. फिलहाल अभी मनीष जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन पुलिस का कहना, सीनियर ऑफिसर्स का कहना है कि जल्द से जल्द जो है मनीष को पकड़ा जाएगा. जी जावेद, बने रहे हमारे साथ. व्यूअर्स, लेट्स ब्रेक सम मोर डिटेल्स ऑफ दिस केस. The case has also taken a new turn after the victim's family leveled serious allegations against the accused. According to the family, Priyanka was killed just hours after celebrating her 34th birthday. They alleged the couple had left home on a scooter after an argument and were heading towards LBS hospital. Priyanka's family has accused the constable of dowry harassment and suspects that she was first assaulted at home before being taken out on the pretext of treatment and later shot. Police are investigating the allegations and the sequence of events leading to the shooting. जावेद, क्योंकि ये महिला को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा है, क्या कुछ परेशानी का सामना पड़ा उन्हें? किस तरह की ट्रीटमेंट, किस बीमारी के लिए ये ले रही थी? We've lost that line with my colleague there, but these are the details that we have, and we move on. Latest news now coming in from Jordan.